All right, let's quickly revise. We have started discussing with the topic of sedition in the last class, right? So in this, basically, we had divided the entire portion of sedition into four parts, where we had seen, first of all, what is the meaning of sedition under section 124A. All right. Then we had moved on to talk about the development of law of sedition over a period of time, which was the first case which was at all dealing about sedition. All right, which was the first case, after which how was the law of sedition used or misused, as the case be. All right. Thereafter, we had talked about, we had moved on to see whether at any point of time there was a liberal interpretation of the law of sedition at all or not, or was it always construed as it is being construed as a draconian law as on date. All right. Then we had moved on to talk about the basic provision that we are looking at today, the basic challenge that we are looking at today, which deals with the constitution. तुम लोग बाद में उसको लिखना, अभी जब जब मैं समझा रही हूँ तो क्यों नहीं समझ रहे हो, आता है क्या फिर? Then we had moved on to talk about the law of constitutionality. ठीक है कि what is the constitutionality of the provision section 124A. ठीक है, अब यहाँ पे to give you a quick review of what we have done in the last class so that you get a base of what we are going to do ahead. ठीक है, सबसे पहले we will talk about what was the meaning of the term sedition. ठीक है, now according to the provision that is given over here, the term sedition implies, or it is a kind of offense where a person, any person, whosoever, all right, any person, what does he do? By means of words. Words can be either spoken or they can be written, or by any kind of visible representations. What does that person do? He spread hatred, contempt, all right? He brings about hatred or contempt, or he excites dissatisfaction, or he attempts to do any of these things. Against whom? Against the government established by law. समझ में आ रही है बात? क्या हो रहा है इस केस में? अंडर सेक्शन 124 है, what is happening, what is the offense that is there? Any person, he by mechanism of words, which can be either written or spoken, or by visible representations, he is doing four actions: spreading hatred, contempt, or exciting disaffection, or attempting to do any of these offenses against the government which is established by law. Then in that particular case, what is happening? He is getting punished for three punishments that has been provided. Either of these: life imprisonment, to which fine can be added; imprisonment up to 3 years, to which fine can be added; or only fine. Okay. We had also seen the reason as to why such a very difference is there between the magnitude of the punishments, for a very simple reason that depending on the action, the magnitude of the seditious material that has been published, the person will be facing the punishment. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा seditious material इसका बहुत ज्यादा high level का है, we had seen how the kind of seditious material where the life imprisonment can be awarded, how that will be bordering the abatement to waging of the war. ठीक है, वो लिमिट पे आ जाएगा. पर other than that, wherever the person has published any kind of a seditious material, what is happening? It is kind of a minor offense only, in the sense that imprisonment is only up to 3 years, or it may also only be punished by fine. ठीक है, तो ये इसका हमने पनिशमेंट देखा था. उसके बाद में we had moved on to understand the explanations that have been provided in the provision. In the provision, three explanations have been provided, out of which explanation one says what is the scope, what is the ambit of the word disaffection. ठीक है, now the term disaffection, colloquially speaking या daily language में हम कहते हैं, तो disaffection का मतलब हो जाता है कि it is something that we don't like the other person. There's some kind of a disloyalty towards the other person, ill will, hatred. ठीक है, उसका डेफिनेशन का जो एम्बिट एक्सप्लेनेशन वन में दिया है, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है. ये कह रहा है कि ये दोनों वर्ड्स भी इसमें आते हैं. ठीक है, तो स्प्रेडिंग एनिमिटी और स्प्रेडिंग सम काइंड ऑफ डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इन क्वेश्चन इज कंसिडर्ड एज डिसअफेक्शन. ठीक है, इसके अलावा डिसअफेक्शन का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो डेली मीनिंग होता है, उसको आप वैसे भी बोल के चलोगे. ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया. ये एक्सप्लेनेशन वन बता रहा है, ये मीनिंग डिफाइन कर रहा है. ठीक है, बट explanation 2 and 3 are in the nature of exceptions to section 124A, where they are saying that any
constructive criticism of the measures taken by the government or any constructive criticism of the administrative policies of the government. इन दोनों को करना, यानी कि any disapprobation, डिसअप्रूवेशन मतलब डिसअप्रूवल, जब हम उस चीज को डिसअप्रूव कर रहे हैं, हम आपकी पॉलिसी को डिसअप्रूव कर रहे हैं, जो मेजर्स आपने दिए हैं हम उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम डिसअप्रूवल अपना एग्जिबिट कर रहे हैं इन अ पीसफुल मैनर, विदाउट exciting any kind of disaffection, without exciting any kind of hatred or contempt. ठीक है, तो क्या तीन होनी चाहिए चीजें? We should be only criticizing or only meeting out any kind of disapprobation with regard to the measures of the government or with regard to the administrative policies of the government. And this disapprobation which is being published or which is being meted out should only be in a peaceful manner, so that it is not likely to incite any kind of disaffection, hatred or contempt among the people. Then in that particular case, such a kind of disapprobation is not going to be considered as an offense of sedition under section 124A. तो यहाँ पे तीन वर्ड्स का मतलब सबको क्लियर हो गया था. 124A के अंदर hatred, contempt, disaffection, ठीक है, एंड हाउ डिसअफेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिसप्रोबेशन. ये पहली बार जो पहला केस आया था जोगिंदर कुमार का, जो भी हम यहाँ पे देखेंगे, उसमें इस डिफरेंस को ले डाउन किया गया था. डिसअफेक्शन इज बेसिकली डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, मतलब, और यहाँ पे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या हो गया? द एंटायर एग्जीक्यूटिव विंग. It can be state government, it can be central government. It is going to be the entire executive wing of the government. उसके अगेंस्ट में आइडिया इज कि आप गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन प्रमोट नहीं करोगे, आप डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे हार्प नहीं करोगे. आप क्या चीज को बोल सकते हो? आप पॉलिसीज को बोल सकते हो, उनके मेजर्स को बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट रेज द डिसकंटेंट अमंग द मासेस विद रिगार्ड टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो दिस difference and disaffection, as was stated in the case of Jogendra Kumar, is mere stating disliking certain measures, spelling out the dislike towards certain measures. ये जोगिंदर कुमार के केस में इस डिफरेंस को पहली बार हाईलाइट किया गया था. और बाल गंगाधर तिलक का केस हम देखेंगे, उसके बाद में आया था. उस केस में डिसअफेक्शन टर्म को इलेबोरेटली बताया गया था कि ये एक्चुअली है क्या चीज. समझ में आ गई बात? बट फिलहाल फॉर द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन, this is the entire provision that you have in front of you, the essentials, the punishment, and finally the exceptions that have been provided in the explanation 2 and 3. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. उसके बाद we had moved on to talk about the development of the law over a period of time with regard to your entire लॉ ऑफ सेडिशन. इसमें हमने देखा था कि ये जोगिंदर बोस का जो केस है, इस केस में पहली बार सेडिशन के ऊपर चार्ज लगाया गया था, सेडिशन का चार्ज लगाया गया था. इस केस में सेडिशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को क्वेश्चन नहीं कराया किसी ने भी. ठीक है, इस केस में जोगिंदर बोस के ऊपर पहली बार चार्ज लगाया गया था सेडिशन का, एंड उसका ट्रायल हुआ था. क्या ट्रायल हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो वी विल डिस्कस टुडे. आज हमारा काम है वो डिस्कस करना. उसके बाद में, इस केस के बाद में, वी सॉ दैट देयर वर मल्टीपल अटेम्प्ट्स where the provision of section 124A was misused to silence the various revolutionaries. उसका एग्जाम्पल हमने देखा तिलक के अगेंस्ट में, बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट में 1897 में पहला सेडिशन का केस लगा था, एंड ही वाज हेल्ड liable. He had to pay a fine of ₹1000. He was penalty of ₹1000 was at that time imposed on बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, उसके बाद अगेन ही वाज चार्ज ट्वाइस मोर फॉर दी विद द चार्जेस ऑफ सेडिशन. ठीक, गांधी जी, महात्मा गांधी के केस में भी यंग इंडिया में उन्होंने पब्लिकेशन किया था, कुछ एसेस का पब्लिकेशन किया था. उसमें उनके ऊपर चार्ज लगा था टू पब्लिश सेडिशन मटेरियल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ही वाज आल्सो charged in this particular provision and he was sentenced to the imprisonment of 6 years. ठीक है, तो ये दो केसेस हैं. इसके बाद में भी है और भी केसेस आए, यही दो नहीं है, बट इसमें हमने एक वीरेंद्र दत्त के केस को डिस्कस किया था. इस केस में थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रिटेशन लेने की सेडिशन के ऊपर कोशिश करी गई थी. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक में डिसअफेक्शन को बहुत नैरोली एक्सप्लेन किया था.
नीरेंद्र दत्त ने थोड़ा सा उसको और वाइडन करने की कोशिश करी थी, ठीक है, बट दैट जॉय वाज आल्सो वेरी शॉर्ट लिव, बहुत जल्दी उसको खत्म कर दिया गया जब एस एन भालेराव, सदाशिव नारायण भालेराव का केस आया। सदाशिव नारायण भालेराव का केस 1947 में आया, जिसके अंदर इस चीज को खत्म कर दिया गया, वापस से जो बाल गंगाधर तिलक की पोजीशन थी उसको रीस्टैब्लिश रीअफर्म कर दिया गया, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक की पोजीशन जो थी, जिस अफेक्शन वगैरह के बारे में जो एक्सप्लेनेशन था, वो चलता आ रहा था, ठीक है। वो कब तक चलता आया? जैसे चलता रहा तारा गोपीचंद तक। इस तारा गोपीचंद के केस में क्या हुआ? फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द सेक्शन 124A वाज चैलेंज्ड। ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने केस हुआ था एंड द प्रोविजन वाज अपहेल्ड टू बी वैलिड, ठीक है। तो अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का प्रोविजन अगर देखो, तारा गोपीचंद के सामने पहली बार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने चैलेंज हुआ और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा सेक्शन 124A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Same question was eventually raised before the Allahabad High Court in the case of Ramanand in 1958, whereby again, इधर आ जाओ, whereby again in Ramanand's case the provision section 124A was held to be अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी दोनों हाईकोर्ट अथॉरिटीज ने, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट, दोनों ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेज कर दिया। फाइनली ऑल दिस वाज put to rest by the constitutional bench. 5 judges bench was there in the case of केदारनाथ, ठीक है। अब ये केस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अब जो केस पेंडिंग है कोर्ट में, दैट इज सीकिंग टू ओवररूल दिस पर्टिकुलर केस इटसेल्फ। क्योंकि केदारनाथ में ये कहा गया that section 124A of Indian Penal Code is perfectly constitutional, ये unconstitutional नहीं है, thereby overruling both the preceding authorities which had declared 124A to be unconstitutional. Finally, 5 judges bench ने कहा section 124A is not ultra virus article 19 of the constitution. However, the Kedarnath judgment went on to explain the ambit of 124A, जहां उन्होंने ये कहा कि merely criticizing the government will not be considered as seditious unless and until it is giving rise to some kind of violence, ठीक है। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म को नेगेटिव नहीं माना, उन्होंने कहा क्रिटिसिज्म इज फाइन, यू कैन क्रिटिक द गवर्नमेंट एज मच एज यू वांट, बट व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर यू डू शुड नॉट क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ वायलेंस, ठीक है। तो ये केदारनाथ के जजमेंट में स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे जर्नलिस्ट की फ्रीडम को भी रिटायरिएट किया गया टू कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर द in order to adapt so that the institutions of the country adapt for better means, ठीक है। ये सारी चीजें केदारनाथ की जजमेंट में कहीं गई, 5 जजेस बेंच थी, ठीक है। अब यहाँ से लेके चीज वैसे ही चलती रही, बीच में रोमेश थापर का केस आया और भी चीजें हुई, बट खास फर्क चेंजेस नहीं पड़े टिल 2021। अब 2021 में यहाँ पर एक विनोद दुआ का केस फाइल हुआ, ठीक है। विनोद दुआ के ऊपर चार्ज था दैट he had said that Prime Minister Modi garnered votes by causing murders and terror, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट एक बीजेपी के नेता थे, उन्होंने केस फाइल कर दिया विद रिगार्ड टू सिडिशन, ठीक है। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली डिसमिस दी एफआईआर, उनके अगेंस्ट डिसमिस कर दिया, saying he only saying this much that Prime Minister Modi has garnered votes by means of terror or all this, it cannot be considered as a sedition, ठीक है। तो यहाँ पे विनोद दुआ का ये केस था। उसके बाद में वांगछेमा की एक पिटिशन फाइल हुई, जहां पे कुछ लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट डाला था क्रिटिसाइजिंग द मणिपुर गवर्नमेंट, सेइंग दैट द मणिपुर चीफ मिनिस्टर इज अ पपेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। At the same time, they had also criticized, they had made the videos, they had posted the videos on Facebook of the fake encounters by the police. तो ये सारी चीजें वांगछेमा के केस में हुई, जिस केस में उन्होंने ये पिटिशन फाइल करी। दिस रिट पिटिशन वाज इवेंचुअली फाइल्ड दैट प्लीज डिक्लेयर सेक्शन 124A टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक पिटिशन का ये था, ठीक है। इसी तरह दूसरी पिटिशन फाइल हुई एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसमें अगेन इट वाज रिटायरिएटेड, इट वाज asked by the prosecution to declare
that the section 124A is unconstitutional. पर इन सब में जो फाइनल पिटिशन सबसे इंपॉर्टेंट फाइल हुई वो थी एसजी बोम्बाटकर की. बोम्बाटकर ये जो है he is a retired major general. He also filed a writ petition requiring that section 124A should be declared to be unconstitutional. ठीक है. All these petitions were thereafter clubbed with SG Bombardker's case. Now अब इस एसजी बोम्बार्डकर केस को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एसजी बोम्बार्डकर का जो केस हुआ, अब ये भी 2021 में फाइल किया गया, पिटिशन फाइल हुई. ठीक है. इस केस में मई में जब हियरिंग हुई, 2022 मई में जब हियरिंग हुई, तब उस समय 3 जजेस बेंच हेडेड बाय जस्टिस रमन्ना, चीफ जस्टिस रमन्ना, उन्होंने कहा कि we will grant a stay on all the applications that have been filed on the matter of sedition. ठीक है. अभी उनमें कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं दिया जाएगा. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट किसी के भी अगेंस्ट सेडिशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगी. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, अगर किसी के अगेंस्ट फाइल होता भी है सेडिशन का केस, देन ही हैज द रेमेडी टू रिजॉर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट. बट उन्होंने इतना कह के इस ऑर्डर को स्टे लगा दिया कि हम स्टे लगा रहे हैं सारी प्रोसीडिंग्स पे. ठीक है. इसके आगे उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया. इवेंचुअली ऑर्डर हुआ, नेक्स्ट ऑर्डर हुआ. अब जो नेक्स्ट ऑर्डर हुआ वो अभी रिसेंटली 2023 में सितंबर में हुआ है, जिसके अंदर द 3 जजेस बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो बेंच है, ठीक है, वी टेक नोट ऑफ द फैक्ट दैट ये जो लॉ है, दिस इज अ कॉलोनियल लॉ, कॉलोनियल एरा लॉ, एंड इट हैज बीन यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू shut down the revolutionaries. Then why do we, what is the need that we have this law? ये क्वेश्चन जस्टिस रमन्ना ने भी रेज किया था ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स. ठीक है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस पॉइंट को कंसिडर किया, एंड ही सेड that we are a 3 judges bench and you are seeking remedy against the Kedarnath judgment, which is a 5 judges bench. So we are not equipped to give a judgment. Hence, we will be referring this matter to the higher number of judges, 5 judges or more. अभी कितने जजेस पे रेफर होगा ये नहीं पता है, अभी किया नहीं है, बट 5 जजेस और मोर का रेफरेंस दिया गया है. ठीक है. बट यहाँ पर एक पॉइंट जो और रेलेवेंट है, वो आप लोगों के हिसाब से रेलेवेंट हो जाएगा कि वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट. इनफैक्ट वहां पे प्रोसिक्यूशन जो गवर्नमेंट है उसने भी ये पॉइंट रेज किया. गवर्नमेंट ने भी कहा कि अब हम बीएनएस लेके आ रहे हैं या बीएनएस आ गया है, देन व्हाट इज द पॉइंट टू डिफर द प्रोसीडिंग्स ऑल टुगेदर. In BNS, we have removed the entire offense of sedition altogether. Then the court said that even if you have removed the offense of sedition in BNS, BNS का एप्लीकेशन क्या होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा. तो यानी कि ऑलरेडी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, दे कैन स्टिल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेडिशियस कंडक्ट. जब हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता है, तो उससे क्या होगा कि जितनी भी पेंडिंग पिटिशंस है वो भी सब डिसमिस हो जाएंगी. हेंस इट इज रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट to look into the constitutional validity of the offense of sedition as provided under IPC. समझ में आया? This was the entire thing that we discussed yesterday in detail. उसी के आगे I think हमने कुछ content लिखा भी था. Anybody has any doubts with regard to this explanation? Any point that is not clear? All right. कल हमने एसेंशियल्स तक लिख लिया था इसके, आज हम इसके आगे बात करेंगे. ऑल राइट.